जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। जी पार्टिसिपेंट्स आवाज आ रही है? यस जी सर बच्चों आ रही आवाज। है। यस सर आप लोग इतने बेटा कम क्यों हैं? टोटल 6 बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, बाकी क्लास किधर है? 7। जी बच्चों सिर्फ 7 बच्चों ने ज्वाइन किया, बाकी किधर हैं? सर पता नहीं सर, आज पेपर था ना, इस वजह से अभी बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, अभी अभी निकले हैं सब। चलें, ओके लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। लास्ट टाइम हम लोगों ने बेटा बात की थी अबाउट द sacroiliac जॉइंट। सबको समझ आ गई थी कि how the sacroiliac joint is going to move or how the sacroiliac joint is providing stability, which is the maximum, or we can say that which is the significant role of that joint, or it also provides mobility as well. ठीक है, तो बेटा टुडे आवर लेक्चर इज अबाउट Mulligan mobilization. It is somewhat theoretical. सर ठीक, जी बेटा। सर प्लीज लास्ट लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दें, मिड की वजह से ले नहीं सके थे। ओके बेटा, आज हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है ठीक सर, है, थैंक ओके। तो okay, so we were talking about today's lecture is about the Mulligan mobilization. It is a theoretical, a background concept, ठीक है, how the Mulligan mobilizations were invented or discovered, and somewhat introduction of these mobilizations, ठीक है, how they are going to work, and what are the concepts behind its behind the mobilization, or behind its role in managing the daily issues which we can see. So now I will come to the lecture. Let's I'm going to share the screen with you people. सो फर्स्ट ऑफ ऑल Mulligan mobilization, आप सबको पता है, आप सब लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि इट इज अ mobilization with movement, और वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन सम डिफरेंट वे, ठीक है, क्योंकि पहले सिर्फ हम या आप लोगों के थेरापेटिक्स 1 में जो लिखा हुआ है कि जी दैट इज मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट, but there are different concepts, different mobilizations for different regions of the body. For example, we can say that for spine it is different, for cervical spine it is different, and for all the other extremities it is different, ठीक है। The concept is different for each region, ठीक है, और उसकी उसका जो रोल है, ठीक है, वो भी बेटा डिफरेंट है। Means to say it is not applicable in every type of patient, it is not applicable for each patient, ठीक है, coming to you with neck pain or back pain, but it is eligible for but some patients are eligible for this mobilization and not all the patients are eligible. So how we are going to differentiate who are eligible and who is not eligible, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इस पे मोबिलाइजेशन अप्लाई करनी है या नहीं अप्लाई करनी? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। लेट्स स्टार्ट विद इट टुडेज लेक्चर। आप सब लोगों को स्क्रीन शो हो रही है बच्चों? यस सर। Okay, so now as you all know that the name of the scientist who actually discovered or who actually invented this mobilizations, ठीक है, or who actually gave the concept, it was Brian Mulligan, ठीक है। Brian Mulligan was a physical therapist,
and he was working as a clinical instructor at at a university in New Zealand. So where actually he gave up. आप कह सकते हो कि जो मेटलैंड और केल्टन बॉन्ड के बेटा कंसेप्ट है ना, ठीक है, आप सबको पता होगा मेटलैंड और केल्टन बॉन्ड के कंसेप्ट का. ही एक्चुअली वर्कड ऑन इट. ठीक है, इसने अपनी जितनी भी जो बेसिक्स है ना बेटा, दैट आर एक्चुअली द सेम एज दैट ऑफ मेटलैंड एंड केल्टन बॉन्ड. ठीक है, बट he just introduced a newer concept of positional fault. ठीक है, जिस बेस के ऊपर इसकी सारी मोबिलाइजेशन की जो टेक्निक्स हैं वो बेस करती हैं, या मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट बेस करती है. ठीक है, एक्चुअली जो बाकी सारा का सारा इसका कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक्स हैं वो सारी की सारी मेटलैंड और केल्टन बॉन्ड वाली हैं. ठीक है, नथिंग डिफरेंट. ठीक है, उसने भी मेटलैंड की तरह या केल्टन बॉन्ड की तरह यही कहा है कि आपने ग्लाइडिंग परफॉर्म करनी है. ठीक है, जिस डायरेक्शन में ग्लाइडिंग रिस्ट्रिक्टेड है. ठीक है, so the only difference is about positional fault. ठीक है, so here we are going to I am going to introduce you. कहते हैं कि जी increased function and decreased pain. ठीक है, जो मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट है उनका जो बेसिक मकसद है, ठीक है, वो ये है, या जो दो गोल्स अचीव हो सकते हैं विद मुलिगन मोबिलाइजेशन, that is increased function and decreased pain. Means to say, if there is a restriction, the restriction will be reduced, or the restriction will be overcome with the help of Mulligan mobilization, as well as if there is a pain, the movement will become painless. Okay, so these are the two goals which we are able to get after performing Mulligan mobilization. Okay, now आप सबको पता है कि जी मुलिगन मोबिलाइजेशन का इट इज कॉन्करेंट एप्लीकेशन ऑफ accessory movements we can say that the glides. ठीक है, you are performing as a physical therapist a glide, and at the same time the patient is going to perform the active physiological movement. Now there are some modifications where the patient is not able to perform the active physiological movement, or is not ready to perform active physiological movement. So in that cases we actually perform the mobilization along with movement, and that movement is also gonna perform by us. ठीक है, मोबिलाइजेशन भी हम लोग परफॉर्म कर रहे होंगे और साथ में मूवमेंट भी हम लोग करवाएंगे. तो हम लोग वहां पर एक्टिव फिजियोलॉजिकल मूवमेंट की जगह पैसिव फिजियोलॉजिकल मूवमेंट लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ Mulligan mobilization या mobilization with movement. ठीक है, ये एक्चुअली फर्स्ट इंट्रोड्यूस करवाई गई थी फॉर सर्वाइकल स्पाइन. ठीक है, और सर्वाइकल स्पाइन में ही इनका सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल है इन एलिविएटिंग ऑफ सिम्टम्स. ठीक है, सो विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, जैसे जैसे कंसेप्ट्स आते गए वैसे वैसे मुलिगन मोबिलाइजेशन जो है दैट विल बिकम इफेक्टिव इन thoracic as well as in lumbar spine. ठीक है, but it has a significant role and play an important role in performing these mobilizations in cervical spine, in patients with cervical spine. ठीक है, issues. Now how he gave the concept of positional fault. अच्छा, अब उसने कहा कि जी कोई भी इंडिविजुअल है, जब उसको कोई इंजरी होती है, इंजरी आप कह सकते हैं whether it is a muscular injury or whether it is another soft tissue injury, ligaments की है, tendons की है, capsule की है, cartilage की है, either if there is any type of injury to the human body. ठीक है, अब वो कहते हैं कि
इंजरी के रिस्पॉन्स में उस जगह का जो जॉइंट होता है, स्पेसिफिकली उस जगह के जितने भी जॉइंट्स होते हैं विच आर मोर क्लोजर, ठीक है, टू दैट इंजरी, they developed positional fault. मीन्स के आप बेटा सबको आवाज आ रही है, सब एक्टिव होके बैठे, मैं एक कॉन्सेप्ट देने लगा हूं. लेट्स से देयर आर 9 और देयर आर 7 पॉइंट्स ऑन ईच आर्टिकुलर सरफेस. ठीक है, अगर हम ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की ही बात कर लें तो आप लोगों को मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि जी ह्यूमरल हेड के ऊपर और ग्लिनॉइड हेड के ऊपर क्या है, 7 जी बच्चों, पॉइंट 7 पॉइंट्स हैं. एक्चुअली हमने आर्टिकुलर सरफेस को ना डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, तो वो जो 7 पॉइंट्स है ना, अब लेट से हमने वो जो आर्टिकुलर सरफेस को डिवाइड किया ना 7 पोर्शंस के अंदर, हमने उन पोर्शंस को नेम दे दिया. ठीक है, मतलब जो पॉइंट एक दूसरे के साथ मीट कर रहा है उन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या कह दिया, 1 1. फिर हमने नेक्स्ट 2 पॉइंट्स को जो मीट करे उनको हमने कह दिया 2 2. ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों ने नेम कर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 and so on. ठीक है, वट एवर द नंबर इज. ठीक है, और इसी तरीके से दूसरी आर्टिकुलर सरफेस को भी हमने नेम कर दिया. अब होता क्या है, वो कहते हैं पोजिशनल फॉल्ट. क्या है पोजिशनल फॉल्ट? ये है कि एक्चुअली 1 ने आना था 1 के सामने. ठीक है, लेकिन अब वो कहां आ गया है, 2 के सामने आ गया है. ठीक है, तो दैट इज अ पोजिशनल फॉल्ट. ठीक है, दैट इज अ पोजिशनल फॉल्ट. बेटा समझ आ रही है बात की? यस सर. तो दैट पोजिशनल फॉल्ट इज गोइंग टू बी that positional fault is going to be corrected with the help of Mulligan mobilization. ठीक है, this is actually the concept which he gives different from that of Maitland and Keltermont कि जी ये पोजिशनल फॉल्ट है, इस पोजिशनल फॉल्ट को आप मेरी ही मोबिलाइजेशन के थ्रू ठीक कर सकते हो. अगर आप मेटलैंड या केल्टनबॉन्ड से करते रहोगे तो कभी भी ये जो पोजिशनल फॉल्ट है ये ठीक नहीं होगा. ठीक है, अच्छा अब ये पोजिशनल फॉल्ट इसकी मोबिलाइजेशन से क्यों ठीक होगा? ठीक है, नाउ he actually introduced कि जी आपने फिजियोलॉजिकल मूवमेंट परफॉर्म करनी है. अच्छा, अब पेशेंट फिजियोलॉजिकल मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है एक्टिवली, उसकी फिजियोलॉजिकल मूवमेंट में जहां पर भी उसको रिस्ट्रिक्शन आएगी, ठीक है, लेट्स से मैं मूवमेंट परफॉर्म करता हूं तो मुझे 130 डिग्री पर जाके स्टिफनेस स्टार्ट होती 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 160-70 डिग्री तक ज्यादा हो जाती है. ठीक है, मतलब स्टार्ट कहां पर हो रही थी 130 डिग्री पर और एंड कहां पर हो रही है 160 डिग्री के ऊपर. ठीक है, तो अब यहां पर अगर लेट से मैं फिजियोलॉजिकल मूवमेंट परफॉर्म करूं और एट द सेम टाइम एक मोबिलाइजेशन परफॉर्म हो, ठीक है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज दैट मूवमेंट, ऑब्वियसली फ्लेक्शन को इंक्रीज करना है. तो फ्लेक्शन क्या है, पोस्टीरियर ग्लाइडिंग मुझे देनी पड़ेगी ना ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के लिए. जी बच्चों, कन्वेक्स टू कनकेव रूल अप्लाई हो रहा है पार्टिसिपेंट्स? यस सर. बेटा ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के ऊपर कन्वेक्स टू कनकेव रूल अप्लाई हो रहा है ना. सो ऑब्वियसली जब ह्यूमरल हेड फ्लेक्स कर रहा है तो ग्लाइडिंग पोस्टीरियर डायरेक्शन में होगी, तो हमने पोस्टीरियर ग्लाइडिंग देनी है. अब वो कहते हैं जैसे जैसे पेशेंट फिजियोलॉजिकल मूवमेंट परफॉर्म करेगा, ठीक है, जहां पर उसको रिस्ट्रिक्शन आएगी आप वहां पर ग्लाइडिंग दे रहे हो. ठीक है, ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक ही जगह पर ग्लाइडिंग देनी है या आपने किसी एक पॉइंट के ऊपर, जैसे कि केल्टनबॉन्ड ने कहा था ना कि जी आपकी रेस्टिंग पोजीशन हो सकती है या एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन हो सकती है या क्लोज पैक पोजीशन हो सकती है. नहीं, आपने किसी एक पोजीशन के अंदर मोबिलाइजेशन नहीं करनी है, आपने थ्रू आउट दैट फिजियोलॉजिकल मूवमेंट आपने क्या करना है, मोबाइल करना है. ठीक है, एंड दैट मोबिलाइजेशन थ्रू आउट द फिजियोलॉजिकल मूवमेंट विल हेल्प टू रीअलाइन दैट पोजीशंस. ठीक है, वो जो 1 के सामने 2 है और 2 के सामने 3 है, ठीक है, ये जो मोबिलाइजेशन जब आप परफॉर्म करोगे तो दैट मोबिलाइजेशन विल हेल्प टू रीअलाइन द आर्टिकुलर सरफेसेस. ठीक है,
or the both articular surfaces when realigned, ठीक है, the symptoms will be decreased, symptoms will be ended, ठीक है, symptoms will be removed and the range of motion will automatically be increased, ठीक है जी बेटा, बात की समझ आई है participants? जी सर। Now, he said that a normal joint is usually designed in such a way कि उसमें जितने भी ligaments हैं, tendons हैं, muscles हैं, articular surfaces हैं, ligaments की orientation है, ligament के fibers की orientation है, muscle के fibers की orientation है, मतलब कि each and every soft tissue as well as the skeletal structure, ठीक है, all are contributing to perform the function efficiently. ये तमाम structures जो है ना बेटा, they are completely involved, ठीक है, और किस चीज के अंदर इन्वॉल्व है कि जॉइंट जो है वो अपने फंक्शन को मैक्सिमम परफॉर्म कर सके, ठीक है। सेकेंडली वो कहता है कि जी इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंस है कि जो आपके सॉरी कि जो आपके कंप्रेसिव फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही है ना बेटा जॉइंट के ऊपर, ठीक है, उन वो एट द सेम टाइम क्या हो रही होती हैं, रिड्यूस हो रही होती हैं जब ये आपके तमाम के तमाम स्ट्रक्चर्स जो हैं ये एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं। या एक नॉर्मल जॉइंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक नॉर्मल जॉइंट में ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर्स एक्चुअली क्या कर रहे हैं, कंप्रेशन को रिड्यूस कर रहे होते हैं और फिजियोलॉजिकल मूवमेंट परफॉर्म करवा रहे होते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है। अब वो कहता है कि ये तमाम के तमाम जो जॉइंट स्ट्रक्चर्स हैं इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज द लिगामेंट, ठीक है। और इसके अलावा वो कहता है अदर सॉफ्ट टिश्यूज हैं जो कि एक्चुअली पोजीशन सेंसेशन को यूज करते हैं। वो कहते हैं कि पोजीशन सेंसेशन जो है वो दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट फैक्टर इन प्रोड्यूसिंग अ मूवमेंट, ठीक है, क्योंकि वो कहता है पोजीशन सेंस ही एक्चुअली एक सेंसरी वो कह लो कि सेंसरी इनपुट है जिसके अकॉर्डिंगली एक मैसेज प्रोड्यूस होना है। अगर वो सेंसरी इनपुट ही अच्छा नहीं होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, मोटर रिस्पॉन्स भी उस तरह से प्रोड्यूस नहीं होगा। इसलिए वो कहता है कि ये जो पोजिशनल फॉल्ट्स हैं इनकी वजह से सेंसरी इनपुट भी आपका खराब हो सकता है, ठीक है बेटा। नाउ इफ इट वो कहता है कि जी आपने जॉइंट सर्फेसिस को रीअलाइन करना है, ठीक है बेटा। सिर्फ इसी कंसेप्ट को याद रखिएगा कि आर्टिकुलर सर्फेसिस को हमने डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड कर दिया और एक जो नंबर 1 आर्टिकुलर सर्फेस है वो नंबर 2 के सामने आ रही है, नंबर 2 जो है नंबर 3 के सामने आ रही है। देयर इज अ स्लाइट मिसमैचिंग, ठीक है, आपने स्लाइट मिसमैचिंग को क्या करना है, रिड्यूस कर देना है, ठीक है। Now, these are different techniques, ठीक है। For example, mobilization with movement, natural apophyseal glides जिसको वो नेक भी बोलता है, ठीक है। मलिगन ने एक मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट कहा और एट द सेम टाइम उसने नेक को भी इंट्रोड्यूस करवाया। नेक इज नेचुरल एपोफिजियल ग्लाइड्स। फिर उसने क्या कहा, सस्टेन नेचुरल एपोफिजियल ग्लाइड्स, ठीक है। सस्टेन नेचुरल एपोफिजियल ग्लाइड्स का मतलब क्या है कि आपने मोबिलाइजेशन करते हुए सस्टेन रखना है, ठीक है, अपनी मोबिलाइजेशन को। फिर लास्ट में उसने कंसेप्ट दिया स्पाइनल मोबिलाइजेशन विद आर्म मूवमेंट्स एज वेल एज विद लोअर एक्सट्रीमिटी मूवमेंट। मतलब उसने यहाँ पे सिर्फ आर्म के लिए नहीं कहा, उसने कहा स्पाइनल मोबिलाइजेशन विद लिम्ब मूवमेंट वेदर इट इज द अपर लिम्ब और वेदर इट इज द लोअर लिम्ब, ठीक है। सो ही गेव ऑल दीज टेक्निक्स, ठीक है। नाउ बेटा याद रखिएगा while you are going for a assessment, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मुलिगन, वो कहते हैं असेसमेंट के लिए आप जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू मुलिगन, आपने क्या करना है, पिल रिस्पॉन्स को चेक करना है। पिल रिस्पॉन्स को क्या करना है, चेक करना है। वो कहता है पिल रिस्पॉन्स क्या है कि आपने मोबिलाइजेशन परफॉर्म की है, ठीक है, तो आप कम से कम ये पेशेंट कम से कम ये जो आपके पास आए पेशेंट, ठीक है, आपने उनमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सो पिल, पी इज फॉर पेन फ्री, ठीक है।
मीन्स टू से जब आप मोबिलाइजेशन परफॉर्म करोगे, ठीक है, तो पेशेंट की पेन पहले ट्रीटमेंट सेशन में ठीक होनी चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पेशेंट जो है वो आई जो है दैट इज द इंस्टेंट रिस्पॉन्स, पी इज पेन फ्री एंड आई इज इंस्टेंट फ्री। ठीक है, इंस्टेंट फ्री मीन्स कि वेन एवर यू आर गोइंग टू अप्लाई मोबिलाइजेशन, ठीक है, इट विल टेक ओनली सेकेंड्स टू प्रोड्यूस दैट it will take only few seconds, ठीक है, to produce that particular response. And the last one is double L, and double L stands for long lasting, means to say it must be a pain relief mobilization, pain free mobilization, it must be an instant relief, and the last one is it must be long lasting। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक दिन के बाद दूसरे दिन दोबारा से आपको मोबिलाइजेशन मूवमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, यहां तक बात ही समझ आ गई। नाउ he also give a second opinion regarding the treatment with the help of mobilization with movement, and he gave the concept of CROX। ठीक है, now CROX is for the C is for contraindications। ठीक है, means to say any patient without any pill response, without any मीन्स टू से कि कोई आपने थेरेपी अप्लाई की, मोबिलाइजेशन, मुलिगन मोबिलाइजेशन अप्लाई करने जा रहे हैं, लेकिन पेशेंट को पेन फ्री, पेशेंट की जो पेन है वो खत्म नहीं हुई, पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ नहीं आया और वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहा, तो दैट इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो सबसे पहले क्रोक्स में जो सी है दैट इज फॉर कॉन्ट्राइंडिकेशन, आपने सबसे पहले चेक कर लेना है कि भाई ये किसमें इंडिकेटेड है मोबिलाइजेशन और किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नाउ द नेक्स्ट वन इज R stands for number of repetitions। ठीक है, वो कहते हैं कि जी आपने सिर्फ और सिर्फ एक दिन में टोटल 3 रेपिटेशंस परफॉर्म करनी है। ठीक है, मुलिगन मोबिलाइजेशन की, नॉट ऑफ एनी अदर मोबिलाइजेशन। ठीक है, जस्ट अ मुलिगन मोबिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कि आप ओवर प्रेशर अप्लाई करोगे एट द एक्सट्रीम रेंज ऑफ मूवमेंट। ठीक है, एक्सट्रीम रेंज ऑफ मूवमेंट में क्या है, मीन्स टू से if the gleno you can say that neck flexion is limited in the extreme range। ठीक है, आपने क्या करना है, उस एक्सट्रीम रेंज पर जाके ओवर प्रेशर जरूर अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज द अगेन सी एंड दैट इज द कम्युनिकेशन। ठीक है, दैट कम्युनिकेशन मीन्स टू से कि आप कितना अच्छा कम्युनिकेट करें विद द पेशेंट। ठीक है, और पेशेंट कितना अच्छा आपकी बात को फॉलो कर रहा है। मीन्स टू से ऐसे नहीं होना चाहिए कि पेशेंट की जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा स्लो हो और आपकी मोबिलाइजेशन बहुत ज्यादा तेज हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द नॉलेज ऑफ द ट्रीटमेंट प्लेन्स एंड द पैथोलॉजी। नाउ द हु इंट्रोड्यूस द ट्रीटमेंट प्लेन, बेटा किसने इंट्रोड्यूस करवाया था ट्रीटमेंट प्लेन? केल्टन बॉन्ड सर। जी, तो केल्टन बॉन्ड इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ट्रीटमेंट प्लेन्स, और इसी ट्रीटमेंट प्लेन्स के ऊपर उसने क्या किया है, अपनी मोबिलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करवाया। तो वो कहते हैं कि ये जो केल्टन बॉन्ड मोबिलाइजेशन है इट इज द बेसिस। ठीक है, मतलब कि आपको जितने भी प्लेन्स हैं, ट्रीटमेंट प्लेन्स हैं, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सस्टेन द मोबिलाइजेशन थ्रू आउट द मूवमेंट। ठीक है, that sustain the movement throughout the mobilization is कि पेशेंट की अब आप देखें ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की फ्लेक्शन स्टार्ट होती है 0 डिग्री से, ठीक है, टिल 180 डिग्री। अब पेशेंट को पेन आ रही है 120 से 150 के दरमियान। ठीक है, तो आपने ये नहीं करना कि जी मैं मोबिलाइजेशन क्या करूं, सिर्फ 120 से 130 डिग्री के दरमियान दूं और 120 डिग्री से पहले ना दूं। ठीक है, ये ज्यादती हो जाएगी, ये हम प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे। सो व्हाट विल बी द बेसिक कंसेप्ट कि जी आपकी मोबिलाइजेशन जो है वो
वो कंप्लीट थ्रू आउट द रेंज ऑफ मूवमेंट अप्लाई होनी चाहिए। जी बच्चों, यहां तक बात की समझ आ गई है? सही, रिपीट कर दे बात। हमने बात कही है कि जीरो से हमारी ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की लेट से फ्लेक्शन है 0 डिग्री से 180 डिग्री तक है। अब आपने असेसमेंट की तो आपको पता चला कि जी पेशेंट को जो पेन होती है वो 120 से 130 डिग्री के दरमियान है। ठीक है, पेशेंट क्या करेगा? पेशेंट चल कर दिया टुक ऑलमोस्ट 10 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट के बाद बेटा आप लोगों ने क्या करना है कि अच्छा बेटा, जीरो से लेके 180 डिग्री तक की रेंज ऑफ मोशन है। आपके पेशेंट, आपको जो असेसमेंट हुई है, आपकी असेसमेंट के अकॉर्डिंगली जो पेशेंट को पेन है वो 130 से 140, 140 से 150 डिग्री के दरमियान है। अब आपने जब मोबिलाइजेशन करनी है तो आपने सिर्फ उस मूवमेंट के 130 140 की रेंज पे आपने मोबिलाइजेशन नहीं अप्लाई करनी, बल्कि आपने थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन, ठीक है, मींस टू से जब पेशेंट 0 से लेके 180 डिग्री तक मूवमेंट परफॉर्म करे तब आपने थ्रू आउट दैट रेंज मोबिलाइजेशन परफॉर्म करके रखनी है। दैट इज अ सस्टेन मोबिलाइजेशन थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन। आपने किसी स्पेसिफिक रेंज के अंदर 130 या 140 या 150 डिग्री के अंदर किसी स्पेसिफिक रेंज के अंदर आपने मोबिलाइजेशन अप्लाई नहीं करनी। ठीक है बेटा? यस सर। नाउ वो कहते हैं कि what are the other principles? ठीक है, वो कहते हैं regarding mobilization with movement, these are the basic principles which we have to follow. The first one is कि आपने साइंस को कंपेयर करना है। ठीक है, आपने लेट्स से वन और मोर कंपेरेबल साइंस को हमेशा क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ड्यूरिंग द असेसमेंट। अब आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? हमने किस कंपेरेबल साइन को आइडेंटिफाई करना है? या आप रेंज ऑफ मोशन अगर रिस्ट्रिक्टेड है, या आप उसको ले लो एज अ साइन, कंपेरेबल साइन, या आप पेन को ले लो एज अ कंपेरेबल साइन। ठीक है, या आप परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शनल एक्टिविटीज को ले लो एज अ कंपेरेबल साइन। ठीक है, या आप किसी स्ट्रेंथ को ले सकते हो, स्ट्रेंथ को, पावर को, इंड्योरेंस को एज अ कंपेरेबल साइन। मीन्स टू से यू हैव टू डिसाइड ड्यूरिंग द असेसमेंट कि जी मैंने किसको बेसलाइन मेजरमेंट, किसको एज अ बेसलाइन मेजरमेंट मैंने मेजर करना है और आफ्टर द ट्रीटमेंट मैंने मेजर करना है। ठीक है बेटा? जी बेटा, बात की समझ आई है? जी सर। Now, the next principle is a passive accessory joint mobilization is applied following the principles of Kelton-Bond. कि जो आपने मोबिलाइजेशन अप्लाई करनी है वो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ Kelton-Bond अप्लाई करनी है। यू डोंट हैव टू फॉलो एनी अदर टाइप ऑफ मोबिलाइजेशन। यू हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ Kelton-Bond, दैट इज कि जी ग्लाइडिंग हमेशा पैरेलल होती है ट्रीटमेंट प्लेन की। ठीक है, अगर ग्लाइडिंग होगी तो पैरेलल होगी, अगर आप कह लो ट्रैक्शन होगी तो दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द ट्रीटमेंट प्लेन। जी बच्चों, बात की समझ आई है? पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स, बात की समझ आई है? यस सर। बेटा बाकी बच्चे क्यों नहीं बोलते हैं? Okay, now the third principle is the therapist must continuously monitor the patient reaction to ensure no pain is recreated. अब वो कहते हैं कि जो थर्ड प्रिंसिपल है वो क्या है कि जब भी आप मोबिलाइजेशन MWM अप्लाई कर रहे हैं, मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट अप्लाई करने हैं, तो आपने ये खुद इंश्योर करना है कि कोई पेन मत हो। ठीक है, अब आप सबको पता है बेटा कि पेशेंट को जब भी पेन होती है, ठीक है, या हमें जब भी कोई पेन होती है तो हमारा फेस रिएक्ट करता है।
ठीक है। तो फेस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे टू फाइंड आउट कि जी पेशेंट को दर्द हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फेस को जरूर कॉन्टिन्यूसली वॉच में रखना है ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट। ठीक है बेटा, दिस इज द थर्ड प्रिंसिपल। नाउ द फोर्थ प्रिंसिपल इज कि जी जब आप पेशेंट को ग्लाइड परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने पेशेंट को कहना है कि अब आप अपने कंपेरेबल वो साइन जो आपने कहा था कि जी आप कंपेयर करोगे, एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट आपने चूज किया था ना कि जी मैं इस साइन को कंपेयर करूंगा, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन। वो कहता है कि ड्यूरिंग दैट एसेसरी मूवमेंट, जब आप एसेसरी ग्लाइड अप्लाई कर रहे हैं, जब आप मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो उस टाइम आप पेशेंट से उसी कंपेरेबल साइन को परफॉर्म करने का कहें कि जी अब आप अपनी मूवमेंट को परफॉर्म करके दिखाएं, क्या मूवमेंट बेहतर हुई है। अच्छा, एक तो ये केस हो गया। दूसरा क्या केस है, अगर मैंने कंपेरेबल साइन पेन को लिया था तो मैं क्या कहूंगा कि जी अब मैंने मोबिलाइजेशन अप्लाई की हुई है, अब आप देखें मूवमेंट करके आपको पेन फ्री है या पेनफुल है। ठीक है, समझ आई बात की। सो दैट इज द फोर्थ प्रिंसिपल। नाउ फिफ्थ प्रिंसिपल इज, वो कहते हैं कि जी फेलियर टू इंप्रूव द कंपेरेबल साइन। ठीक है, अगर आप फेल हो जाते हैं कि आपने साइन को कंपेयर नहीं कर पाए, मींस टू से कि आपने मोबिलाइजेशन अप्लाई की है, ठीक है, और वो जो मोबिलाइजेशन है अलोंग विद फिजियोलॉजिकल मूवमेंट वो आपने बिल्कुल ठीक अप्लाई किया है, लेकिन वो कहते हैं कि आपको अगर रिजल्ट नहीं मिला, मींस टू से अगर पेनलेस नहीं हुई, अगर मूवमेंट इंस्टेंट रिलीफ नहीं मिला, अगर लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ठीक है, तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है कि आपने वो जो ट्रीटमेंट प्लान चूज किया है वो ट्रीटमेंट प्लान ठीक नहीं है। बेटा बात की समझ आ रही है। ट्रीटमेंट प्लान चूज करने का मकसद क्या है कि अब आपने जो ग्लाइडिंग अप्लाई करनी थी इन पोस्टीरियर डायरेक्शन, आप वो ग्लाइडिंग उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। जी बच्चों, बात की समझ आई है। तो पहला तो पार्टिसिपेंट्स, पहला तो कंसेप्ट ये है कि आपका आपने जो ट्रीटमेंट प्लेन चूज किया था कि जी मैं पोस्टीरियर डायरेक्शन में ग्लाइड दूंगा, पहली बात तो ये कि आपने शायद वो सही चूज नहीं किया। फिर सेकंड क्या हो सकता है कि अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग इंस्टेंट रिलीफ, ठीक है, या पिल रिस्पॉन्स, या सिंपल मैं कह रहा हूं कि ये पिल रिस्पॉन्स कि जी पेन रिलीव नहीं हुई, इंस्टेंट रिलीफ नहीं आया और लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, पिल रिस्पॉन्स उसको हम बोलते हैं। सो अगर पिल रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है, तो दूसरी वजह क्या हो सकती है कि आपके पास जो सेगमेंट है ना मोबिलाइजेशन का वो करेक्ट नहीं है, आपने जहां पर मोबिलाइजेशन अप्लाई करनी थी आप उस सेगमेंट के ऊपर मोबिलाइजेशन अप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है, और तीसरा आपके पास क्या वजह हो सकती है कि मंशात के पास, मंशात के पास देखें। और थर्ड वजह क्या हो सकती है, थर्ड वजह ये हो सकती है कि जी जो टेक्निक है दैट इज नॉट इंडिकेटेड फॉर दैट स्पेसिफिक पेशेंट। ठीक है, अगर आपको पिल रिस्पांस नेगेटिव आया है तो इसका मतलब क्या है कि ये टेक्निक इस पेशेंट के लिए नहीं अप्लाई कर सकते आप, मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट इस पेशेंट के लिए अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, तो सिक्स्थ इज, वो कहते हैं कि जी जो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, जो भी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है या पेनफुल है, ठीक है, आपने पेशेंट को कहना है कि उसको रेपिटेटिवली परफॉर्म करे उसी मूवमेंट को व्हाइल यू आर अप्लाइंग द एक्सेसरी ग्लाइड। ठीक है, आपने एमडब्ल्यूएम अप्लाई करके रखनी है, मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट आपने परफॉर्म करनी है और पेशेंट को कहना है कि उसको रेपिटेटिवली क्या करे, जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है या जो मूवमेंट पेनफुल है उसी मूवमेंट को वो रेपिटेटिवली परफॉर्म करे। ठीक है, और वो कहता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ रेपिटेशंस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे उसके रिस्पांस में या जो आपका कंपेरेबल साइन है उसमें बेहतरी आती जाएगी।
ठीक है। रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड थी तो वो विद द नंबर ऑफ रेपिटेशंस वो बेहतर होती जाएगी। अगर कंपेरेबल साइन पेनफुल कंडीशन थी या पेनफुल मूवमेंट थी तो वो भी विद द नंबर ऑफ रेपिटेशंस बेहतर होती जाएगी। नाउ वो कहता है नेचुरल एपोफिजियल ग्लाइड्स, ठीक है। दीज आर एक्चुअली एपोफिजियल, आप सबको पता है एपोफिजियल जॉइंट्स हम लोग बोलते हैं फेसर जॉइंट्स को, ठीक है। सो नेचुरल एपोफिजियल ग्लाइड्स का मतलब क्या है कि वो ग्लाइड्स जो कि सेम टू सेम ऐसी हों जैसा कि फेसर जॉइंट ग्लाइड करता है ड्यूरिंग अ फिजियोलॉजिकल मूवमेंट, ठीक है। उसको हम लोगों ने कहा है नेचुरल एपोफिजियल ग्लाइड्स, ठीक है। मीन्स टू से कि अगर फॉरवर्ड बेंडिंग के वर्क फेसर जॉइंट्स जो हैं वो फॉरवर्डली और इंटीरियर एंड सुपीरियर डायरेक्शन अगर ग्लाइड करें तो नेक्स्ट भी आपने उसी डायरेक्शन में अप्लाई करनी है, ठीक है, सही है। और जब पेशेंट फ्लेक्शन करके वापस आ रहा है तो क्योंकि उसकी ग्लाइडिंग बैकवर्ड हो रही है तो आपने उसी तरीके से बैकवर्ड ग्लाइडिंग परफॉर्म करनी है, ठीक है। जो सस्टेन नेचुरल एपोफिजियल ग्लाइड्स हैं बेटा उनका क्या डिफरेंस है कि आपने ड्यूरिंग अ फ्लेक्शन मूवमेंट जब न्यूट्रल पोजीशन से पेशेंट फ्लेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो आपने एक ही सस्टेन प्रेशर अप्लाई करके रखना है, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि जी विद एवरी डिग्री ऑफ फ्लेक्शन और विद एवरी डिग्री ऑफ फॉरवर्ड बेंडिंग आपने फर्दर ग्लाइड देनी है जो कि आप नेचुरल एपोफिजियल ग्लाइड्स में दे रहे हैं। बच्चों बात की समझ आ रही है पार्टिसिपेंट्स? नो सर, ये नहीं समझ आई। अच्छा, नेचुरल एपोफिजियल ग्लाइड क्या है बेटा कि विद, देखो ना फ्लेक्शन होती है तो फ्लेक्शन हो रही है तो ऐसा तो नहीं ना होता कि फ्लेक्शन के अभी स्टार्ट ही हुई है तो फेसर जॉइंट की पूरी ग्लाइडिंग हो गई है। होता क्या है कि जब सर्वाइकल स्पाइन आपकी बेंड कर रही होती है, फॉरवर्डली बेंड कर रही होती है, तो उस फॉरवर्ड बेंडिंग के साथ क्या होता है कि आपका फेसर जॉइंट ग्लाइड करना स्टार्ट करता है एंड ग्लाइड करते करते क्या कब तक ग्लाइड करता रहता है जब तक के सर्वाइकल स्पाइन की फॉरवर्ड बेंडिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। ऐसे ही है ना बेटा, ठीक है। तो नेचुरल एपोफिजियल ग्लाइड्स भी आपने बिल्कुल इसी तरीके से अप्लाई करनी है कि जैसे जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग होती जाएगी, ठीक है, लेट्स से 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ न्यूट्रल पोजीशन की और 10 डिग्री तक गया तो आपने उतनी ही मोबिलाइजेशन अप्लाई करनी है जो 10 डिग्री के लिए अवेलेबल है। आपने पूरी मोबिलाइजेशन अप्लाई नहीं कर देनी, ठीक है, पूरी ग्लाइड अप्लाई नहीं कर देनी आपने 10 डिग्री के लिए। फिर जैसे वो 20 डिग्री तक जाता है तो आपने 20 डिग्री तक, फिर 30 डिग्री तक, 40 डिग्री तक एंड सो ऑन टिल मूवमेंट बिकम कंप्लीट। दैट इज द नेचुरल एपोफिजियल ग्लाइड के विद सक्सेसिव मूवमेंट आपने उसी तरीके से ग्लाइड को आगे लेके जाते जाना है, ग्लाइड परफॉर्म करते जाना है, ठीक है। अब बात की समझ आई है? जी सर। और सस्टेन नेचुरल एपोफिजियल ग्लाइड्स का मतलब क्या है कि आपने जब मूवमेंट स्टार्ट हुई है, मूवमेंट के स्टार्ट से मूवमेंट के एंड तक आपने एक ही सस्टेन प्रेशर, ग्लाइड का एक ही सस्टेन प्रेशर अप्लाई करके रखना है। दैट इज सस्टेन नेचुरल एपोफिजियल ग्लाइड्स। बेटा दोनों में डिफरेंस है, नेचुरल एपोफिजियल ग्लाइड्स क्या है, सस्टेन नेचुरल एपोफिजियल ग्लाइड्स क्या है। सस्टेन नेचुरल एपोफिजियल ग्लाइड का मतलब क्या है कि मैंने एक सस्टेन प्रेशर अप्लाई करके रखना है, ठीक है, मैंने उसको कम या ज्यादा नहीं करना। विद मूवमेंट मैंने एक सस्टेन प्रेशर अप्लाई करना है और पेशेंट क्या करेगा, एक कंप्लीट मूवमेंट परफॉर्म करेगा, ठीक है। नाउ अच्छा, वो क्या कहता है, मोलिगन ने कहा था कि हमेशा ये जो जितनी भी मूवमेंट्स हैं, स्नैग्स हैं या नेचुरल एपोफिजियल ग्लाइड्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये सर्वाइकल स्पाइन के लिए या किसी भी सर्वाइकल स्पाइन के रीजन के लिए, आपने जब भी मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट स्पाइन के किसी रीजन के लिए अप्लाई करनी है तो हमेशा वेट बेयरिंग पोजीशन में करनी है। मेटलैंड और केल्टन बॉन्ड ऐसा नहीं कहते। मेटलैंड और केल्टन बॉन्ड क्या कहते हैं कि आपने ग्रेविटी को एलिमिनेट कर देना है, ठीक है, ताकि मैक्सिमम रिजल्ट मिले।
लेकिन मुलिगन क्या कहता है कि आपने किस में अप्लाई करनी है, वेट बेयरिंग पोजीशन में अप्लाई करनी है, ताकि मैक्सिमम रिजल्ट मिले अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल एक्टिविटीज। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो कहता है कि ये वो मूवमेंट्स हैं जो, ये वो ग्लाइडिंग है या ये वो मोबिलाइजेशन है जो कि फिजियोलॉजिकल मूवमेंट के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। वो एक्टिव फिजियोलॉजिकल मूवमेंट भी हो सकती है, वो पैसिव भी हो सकती है। ठीक है। थर्ड क्या है, वो कहता है कि आपने हमेशा केल्टन बॉन्ड के ट्रीटमेंट प्लेन को फॉलो करना है। ठीक है। फोर्थ क्या है, वो कहता है कि जी एक्सट्रीम रेंज ऑफ मोशन के ऊपर आपने, मतलब कि जब रेंज ऑफ मूवमेंट जो है दैट इज कंप्लीटिंग, ठीक है, तो आपने उस एंड मूवमेंट के ऊपर ओवर प्रेशर जरूर अप्लाई करना है ताकि कैप्सूल को मैक्सिमम स्ट्रेच मिल सके। ठीक है। वो कहते हैं कि ये तमाम के तमाम स्पाइन के जॉइंट्स के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं मुलिगन मोबिलाइजेशन। ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी इसमें आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि मुलिगन मोबिलाइजेशन जो है वो इस पेशेंट के लिए इंडिकेटेड है या इंडिकेटेड नहीं है। ठीक है। इंडिकेटेड किसमें है, जिसमें पोजिशनल फॉल्ट है। ठीक है। अब आपको सबको पता है पोजिशनल फॉल्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस में हो सकता है। जी हो बच्चों, हो सकता है। बेटा पोजिशनल फॉल्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस में कैसे हो सकता है? पोजिशनल फॉल्ट का मतलब क्या है कि देखो, इस बात को, कॉन्सेप्ट को समझो कि पोजिशनल फॉल्ट उनमें हो सकता है जो नियर टू नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, उनमें ऐसा कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, दे आर नियर टू नॉर्मल। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसा कि आप हैं, जैसा कि मैं हूं, हमें कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, लेकिन ड्यू टू आवर ऑक्यूपेशन, ड्यू टू आवर स्ट्रेसेस, ठीक है, हमारा जॉइंट जो है वो अपने मैकेनिक्स को चेंज कर लेता है और मैल अलाइंड होना शुरू हो जाता है। ठीक है। दिस इज अ पोजिशनल फॉल्ट। नंबर 7 क्या है, दे आर ऑलवेज पेनलेस एंड देयर इफेक्ट विल बी लॉन्ग लास्टिंग। अगर ये परफॉर्म की जाए विद इफेक्टिव टेक्निक। वो मुलिगर ने कहा था कि मेरी मोबिलाइजेशन जो है वो गलत नहीं हो सकती, आपका अप्लाई करने का तरीका गलत हो सकता है। ठीक है। तो हमेशा ये बात याद रखनी है कि अगर आपको मुलिगन मोबिलाइजेशन से इफेक्ट नहीं मिल रहा तो इट मीन्स कि आप जिस सेगमेंट को चूज कर रहे हो या तो वो खराब है, वो सेगमेंट ठीक नहीं है। ठीक है। आप जो मोबिलाइजेशन अप्लाई कर रहे हो वो उस ट्रीटमेंट प्लेन में मोबिलाइजेशन नहीं अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है। या फिर वो कहता है कि वो पेशेंट इंडिकेटेड नहीं है, उस पेशेंट के लिए ये मोबिलाइजेशन इंडिकेटेड नहीं है, वरना वो कहता है मेरी मोबिलाइजेशन में कोई गलत कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है। मेरी मोबिलाइजेशन हमेशा पिल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी देयर विल बी एन इंस्टेंट रिलीफ। ठीक है। पेनलेस है, इंस्टेंट रिलीफ देती है, लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी इसका बिल्कुल एक सीधा सा तरीका है कि जो मूवमेंट आपकी लॉस है, आपने सिर्फ उसी मूवमेंट के लॉस को इंप्रूव करने के लिए मोबिलाइजेशन करनी है। आपको बाकी किसी मूवमेंट को चेक करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये देखना है कि कौन सी मूवमेंट लॉस्ट है। ठीक है। आपने उसको ट्रीट करना है। ठीक है बेटा। हमेशा पोजिशनल फॉल्ट के अंदर किसी एक मूवमेंट में इशू ज्यादा होता है, बाकी मूवमेंट्स में कोई इशू नहीं होता, या ये भी याद रखिएगा। अगर आपने पोजिशनल फॉल्ट को फाइंड आउट करना हो तो आपको पोजिशनल फॉल्ट को फाइंड आउट करने में क्या इजीनेस है कि पोजिशनल फॉल्ट में सिर्फ एक मूवमेंट ऐसी होती है जो जिसमें इशू आता है पेशेंट को। ठीक है। बाकी तमाम पोजीशंस में पेशेंट को कोई इशू नहीं आता। उसके बाद वो कहता है ये तमाम की तमाम जो मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट है, ये आपने एक्सट्रीम रेंज के ऊपर, एंड रेंज के ऊपर परफॉर्म करनी है। और ऐसी ये तमाम की तमाम मोबिलाइजेशन जो हैं ये पेशेंट खुद भी परफॉर्म कर सकता है। ठीक है।
जी बच्चों बात की समझ आ गई है? Participants, any question related to this article? No, sir. ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।